So in today's lecture, we are going to start with the overview of the capital market. Technically, this is your first lecture for your capital market and securities law, which is paper number 6 of your CS Executive Group 2. Now, before I go ahead and discuss with you all the overview of the capital market, let's first understand the concept of financial market. अभी देखो फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमें दिमाग में लगाना है, देखो जो ये कैपिटल मार्केट है, this capital market is part of the financial market. Now what is financial market? Just see, financial market is a place where your borrowings, or rather I would say your savings, okay, your savings are being invested as investments. You save money. A very classic example, you all have studied in your economics, the household do the saving and the business invest that money. So financial market is a place where the savings are being diverted in the form of investments into the business, and then later on these investments, they give return to these savings, right? So this is financial market. पैसों का लेना देना, अदला बदली जो होता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं financial market. Now this financial market has got two components. आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट का दो आपको एस्पेक्ट मिलेगा. एक एस्पेक्ट होगा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, और एक होगा जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट. ओके, there are two parts of financial market. One is capital market, another is money market. When I say capital market, this is for long term. देखो कैपिटल किसी भी बिजनेस में कब के लिए लगता है? It's being invested in the business for long term. And then you have the money market, and the money market, it is for short term. So how do you define long term and short term? किसी के लिए एक महीना भी शॉर्ट टर्म हो सकता है और किसी के लिए एक साल भी शॉर्ट टर्म हो सकता है. सो शॉर्ट टर्म क्या? सो शॉर्ट टर्म इज बेसिकली हियर अप टू 1 year. अप टू 1 year अगर आप देखो तो दिस इज शॉर्ट टर्म. एंड लॉन्ग रन इज व्हाट? और लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में क्या होगा? व्हेन इट इज फॉर मोर देन 1 year. We'll discuss about the money market also later. Right now, let's cover the capital market. When I say capital market, just a minute. Yeah. So when I say the capital market, in the capital market, you will see or will get to learn there are different instruments of capital market. हम यहाँ पे बहुत सारे instruments के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. ओके, हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट? सो अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के अंदर जो पार्ट 2 है आपका, उस पार्ट 2 में आपको इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरमीडियरीज दोनों यहाँ पर देखेंगे. इसके अलावा कैपिटल मार्केट में हम पढ़ेंगे समथिंग अबाउट the debt market. Okay, see, part of this you are going to study in your executive, and part of this you are going to study in your professional. So debt market, और फिर आप यहाँ पर पढ़ोगे something called as securities market. Okay, अब अगर आप securities market का बात करो तो securities market दो categories में आपको देखने को मिलेगा. One is going to be the primary market. Okay, and the other is called as the secondary market. I hope ये term आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, primary market and secondary market. Now when I say primary market, secondary market, securities market, here you are going to get the concept of stock exchange. Okay, here you are going to get the concept of stock exchange. The primary market, secondary market, you will have the stock exchange here. Thereafter, this stock exchange, they'll also have the regulations with respect to the stock exchange. So this again we are going to study. Thereafter, we are going to study
how the securities are going to get listed. So we'll study about the listing of these securities. Okay, listing of the securities. We will also see how does the trading takes place. So when I talk about stock exchange, we'll discuss about all these three things: the listing of the securities, the trading of the securities, and then if you don't want the company to be listed anymore, we will also discuss about the delisting of the securities. This is all in India. We will also understand something called as the concept of euro issue. What is euro issue, sir? When you issue the securities in the overseas market. Sir, only Europe? No, not Europe. This can be outside India. Okay, outside India to any country. It can be USA, it can be Europe, it can be everything, right? अब आप देखो यहाँ पे आता है ओवरसीज. ओवरसीज इज इंडिया से बाहर. ओवरसीज का सिंपल मतलब है इंडिया के बाहर. सर सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है, एक ये पॉइंट है हम अभी डिस्कस करेंगे. सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है. देखो सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. जब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट. जब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आएंगे. इनफैक्ट जब हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक एक्ट हम पढ़ने वाले हैं SCRA, जो आपके मॉड्यूल का सबसे पहला एक्ट है. वो यहाँ पर डिफाइन करता है व्हाट इज अ सिक्योरिटी. तो वहां पर जो दिया हुआ रहेगा वहां पर ये पॉइंट आपको दिखेगा. ओके, फिर आप देखो यहाँ पर यूरो इश्यूज के ऊपर आएगा. ओके, यूरो इश्यूज वेयर आई सेड यू आर गोइंग टू इशू सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया. सो यूरो इश्यूज के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेगा. लेट्स से ADR, there is something called as ADR, there is something called as GDR. Okay, आप ये पढ़ोगे. Then you are also going to study something about FCCB. Then you are also going to study something about FCEB. Then you are also going to study something about ECB. ये सब अलग अलग टर्म्स जो आपको भी यहाँ पर जार्गन्स लग रहे होंगे, ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि जो फॉरेन के सिक्योरिटीज है, मतलब फॉरेन के कंपनीज है, ये तो क्या हुआ इंडिया के कंपनीज फॉरेन में जा रहे हैं, हो सकता है फॉरेन के कंपनीज इंडिया के अंदर भी आए, तो वहां पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा देखने को. वी विल ऑल्सो सी द इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, IDR. ओके, इसके अलावा सर हमें और क्या देखने को मिल सकता है. इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा ऑफ डिपॉजिटरी. सर डिपॉजिटरी क्या होता है. डिपॉजिटरी मींस जो पहले फिजिकल ट्रेडिंग होता था, पेपर फॉर्म में शेयर्स होता था, आज की डेट में वो पेपर फॉर्म में शेयर्स नहीं रहेगा, वो बन जाएगा आज की डेट में क्या, वो बन गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. सो डिपॉजिटरी इज वन जो बेसिकली पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर. तो ये जो आप जीरो द अप स्टॉक इन सब के एड्स जो देखते हो कि क्लिक करती है आप शेयर को बाय कर लो, क्लिक करती है आप शेयर्स को बेच दो, ये कैसे होता है, डिपॉजिटरीज की वजह से ही होता है. अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे एशो ने लिखा है डीमैट अकाउंट, दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. डिपॉजिटरीज की वजह से आप डीमैट अकाउंट को यहाँ पर लेकर आते हो. देन फर्दर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग. ठीक है, यू विल ऑल्सो गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है. इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स basically there are few people who are within the organization, okay, and these people get access to some information which can affect the price. Okay, let's say you become the company secretary of a company. Let's say समृद्धि रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी बन जाती है. अब क्योंकि वो रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी है, तो she has got access to lot of information which we as public do not have. Now there can be some good news in Reliance
there can be some bad news in the Reliance. Whatever the news is, it is going to impact the share price of Reliance. Taking advantage of that, Samruddhi buys or sells the shares. Let's say there is a good news. Tomorrow we know that once the news will be made public, the shares of Reliance is going to shoot up. So Samruddhi today purchases all the shares at a lower price, and tomorrow when the good news is being announced, वो यहाँ पर सारे shares को बेच देती है, तो उनको तो फायदा हो गया, right? अब इसमें अनड्यू एडवांटेज मिलता है, बिकॉज मार्केट में हम किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द पैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सबके पास इंफॉर्मेशन बराबर है और आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करके शेयर्स को परचेज कर रहे हो. सो सेबी सेज दैट इनसाइडर ट्रेडिंग, हम इसको पकड़ेंगे. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड्स. तो आप ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ोगे. एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स नहीं, मैं आपको जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पढ़ाऊंगा, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड्स, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स. तो अगर आपको एक फंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड. अर्लियर इन द ओल्ड सिलेबस यू हैड two more funds in your syllabus, REITs and InvIT. Now REITs and InvIT is no longer part of your executive syllabus, that has been transferred to your final syllabus. Then we will also discuss something called as the collective investment scheme, CIS के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देन आगे अगर आप चेक करो तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज बाईबैक रेगुलेशंस. ये सब आपके अब सिलेबस का पार्ट हो गया. बाईबैक रेगुलेशंस विल आल्सो सी दैट व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, सो वी विल आल्सो सी द स्वेट इक्विटी शेयर्स. And most important from all these things, we will also see the SEBI Act, the most dangerous act, SEBI Act 1992. And why I say dangerous and why I say important, because everything जितना भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन सब का बेसिस क्या है, इन सब का बेसिस ही है SEBI Act. So many things are there which will be there for the SEBI Act. अब आप देखिए यहाँ पे आगे अगर आप चलो तो आपको यहाँ पर मिलता है फाइनेंशियल मार्केट. सो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? वी जस्ट डिस्कस दैट फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सेविंग्स गेट invested, right? The savings are allocated for the investments. So यहाँ पर ये point आ जाता है that what is financial market? It is a market where the savings are allocated for the investments. Then here the movements takes place from the savings of the business, savings from the household to the business, and it comprises of the two market like we saw in the diagram. One is the money market, which is for short term, and then you have the capital market. Further, the capital market is again bifurcated into two categories. One is going to be, so basically if you see here, capital market is for short term, and a money market is for short term, and capital market is for your long term. ये आपका रहता है. Now what is money market? So like I mentioned, money market, it is part of the financial market, and it is again, why money market exists? This is to solve the liquidity needs. मुझे कुछ टाइम के लिए पैसे चाहिए, तो मैं कैपिटल मार्केट में जाके शेयर्स को रेज नहीं करूंगा, मैं मनी मार्केट में जाके फंड्स को रेज करूंगा, एंड आई विल ensure that I have sufficient funds to support my business or the liquidity needs. There is a very low default risk, okay, because आपके जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर होते हैं वो कौन होते हैं? ज्यादातर आपको गवर्नमेंट मिलेंगे, और वो लोग मिलेंगे जिनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, राइट? These are highly marketable and maturities of less than 1 year. Then we have the securities market, और securities market में अगर आप देखो, this is part of the capital market where the different types of securities are issued, they are traded. So securities market, now we are talking about the stock market, right? The stock exchange, the stock market. This is the securities market. So here the securities are being issued and they are also being traded. The securities market have two segments. One is the primary and another is the secondary. So just understand, whenever a company fresh issues, or whenever the company issues fresh shares, right? That is what? That is the primary market. And what is secondary market? When the already issued shares, okay?
are traded. Here the fresh shares are being issued by the company. So this is primary market, and secondary market is the place where the shares which are already issued, those are being traded. A classic example you will get to know of this is basically your IPO and FPO. IPO एंड एफपीओ आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया. जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आता है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ. सो आईपीओ पार्ट होता है प्राइमरी मार्केट का, लेकिन एक बार जब शेयर्स आ जाते हैं और उसके बाद उस पर ट्रेडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं एफ. और बेसिकली सॉरी, आईपीओ एंड इवन एफपीओ, आई एम रियली सॉरी, एफपीओ विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट ओनली. आईपीओ एंड एफपीओ ये भी आपका प्राइमरी मार्केट का पार्ट होगा. ऑलरेडी इशूड शेयर्स जब हम बोलते हैं ट्रेडिंग, व्हेन वी डू द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स. सो रिलायंस का पब्लिक इशू आया, ठीक है, रिलायंस का पब्लिक इशू आया, किसी भी कंपनी का पब्लिक इशू आया, फर्स्ट टाइम आया या फिर सब्सिक्वेंटली दोबारा से उन्होंने पब्लिक के पास से पैसा रेस किया, तो दैट इज ऑल प्राइमरी मार्केट. एक बार जब शेयर्स इशू हो गया उसके बाद जब ट्रेडिंग होगा तो वो कौन से मार्केट में होगा? दैट इज गोइंग टू हैपन इन द सेकेंडरी मार्केट. मेक सेंस? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, राइट? तो आप ये देखो, स्टॉक एक्सचेंज, लाइक आई मेंशन, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? इट इंश्योर्स दैट देयर इज फ्री मार्केटेबिलिटी. ठीक है, मार्केट में आपके जो शेयर्स हैं उसका ट्रेडिंग इजीली हो, आप शेयर्स बेच सको. दिस इज वन ऑफ द रीजन स्टॉक मार्केट का. देन इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द प्राइस इज बिंग डिटरमाइंड. किसी एक शेयर का कोई भाव है, देखो कोई अगर शेयर लिस्टेड है, इफ देयर इज अ शेयर विच इज लिस्टेड, तो हमें उसके प्राइस में कोई डिबेट करने का जरूरत ही नहीं है. हम स्ट्रेट अवे क्या बोलेंगे, आप एक काम करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके देख लो, उस शेयर का जो भी प्राइस है वो इसका फिक्स प्राइस हो गया. लेकिन अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब जिसके शेयर्स सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको वैल्यूअर को अपॉइंट करना होता है और वो यहाँ पर आके शेयर्स का वैल्यू करता है. जैसे क्लासिक एग्जांपल, इज रिलायंस लिस्टेड कंपनी? आंसर इज यस, द रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ लिस्टेड कंपनी. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको अगर प्राइस पता करना, यू गो टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यू गो टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वहां पर जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होगा वहां से आपको पता चल जाएगा दिस इज द प्राइस. बट इफ आई से मुझे जियो का प्राइस पता करना है, नाउ जियो इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, उसके शेयर्स अभी तक पब्लिक में लिस्ट नहीं हुए हैं, जियो ने अभी तक प्राइमरी मार्केट को नहीं देखा है, तो यहाँ पर जियो का शेयर का वैल्यूएशन अगर आपको कराना होगा तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से शेयर का वैल्यू करवाना पड़ेगा. तो स्टॉक मार्केट का एक और फंक्शन जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, that is with respect to the determination of the price. Then it also provides liquidity to the investors. Okay, it provides liquidity to the investors. ये दोनों पॉइंट को अगर आप देखो, so these two are connected. It provides liquidity, hence it ensures free marketability. It ensures free marketability, hence it provides liquidity to the investors. इसका क्या मतलब होता है? I have invested 1 lakh rupees in the shares of a company. Tomorrow I am in a need of that money. I need 1 lakh rupees. Okay, I want to buy something, I want to go out, maybe there is some medical emergency, there can be anything, I need that 1 lakh rupees right now. So what would I do? Can I go to the company and can I ask the company that please take this 1 lakh rupees, please take back your shares and give that 1 lakh rupees to me? Answer is no. What I'm going to do instead, I'll go to the stock exchange and I'll ask my broker that please go and sell the shares that I have in my Demat account, right? Whatever shares I have, just sell it, and whatever money I get, please give it back to me. So this is possible only because of the stock exchange. It provides liquidity to the investors. Then it also facilitates the purchase and sale of security. Again, these 2 points are again connected. All these points are interconnected. I want to buy shares of, let's say, DMart. Samruddhi wants to purchase the shares of DMart. I want to sell the shares of DMart. Samruddhi wants to purchase the shares of DMart. So where it is going to happen? It is going to take place at stock exchange. See, every day on stock exchange, thousands and lakhs of investors,
they buy and they sell. And the best part, I don't know from whom I have purchased the shares. I don't know to whom I have sold the shares. But I just know that I went to the market at Bombay Stock Exchange and I have sold the shares. Okay. Or I have purchased the shares, whatever the case may be. And I'm very sure if I have purchased the shares, I have paid money, in which return I'm going to get the shares. If I have sold the shares, I'm very sure I am going to get the money. I know this. I don't know who the person is, whether it is Samruddhi, or this is Eshu, or this is Aishu, or this is Purvi, or this is Sahil, or this is Harsh, or this is Dipali. I don't know who is this person to whom I have sold the shares. I just know I have sold the shares to the exchange. Now, how does this work? So Bombay Stock Exchange, okay, what Bombay Stock Exchange is going to do, or any stock exchange is going to do, it is going to provide you a terminal. In that terminal, any person who wishes to buy will place the order. Okay, so let's say I want to purchase 1000 shares of ITC. Okay, so I will punch a order that I want to buy 1000 shares of ITC, and I will also put the price that at this particular rate. So let's say, right, I want to purchase shares of ITC, 1000 shares of ITC at 240 rupees each. Now, on the other hand, if someone wants to sell the shares of ITC, that person will also punch the order on this same platform. This person would say, okay, I want to sell 1000 shares of ITC at the rate 250 rupees. So can this order be matched? Answer is no. Bombay Stock Exchange, their portal will say that no, I am not finding a person, or I am not finding a matching order. You have placed a buy order, so I have to find a matching sell order. Here the person has punched a sell order. Bombay Stock Exchange has to find a matching buy order. Now, because the prices are different, in that case, the order will not get executed. Samruddhi has said that BSE will act as a middleman. Exactly. BSE is going to act as a middleman. So somewhere I realized that, I am not getting the shares at 240 rupees. So what will I do? I will change the price. I will make it 245 rupees. Now, similarly, the seller also believes that no one is ready to pay 250 rupees to me. So let's reduce the price. He also puts down the share price to 245 rupees. The moment this happens, the Bombay Stock Exchange portal, okay, this terminal will say that, oh, I've got this matching order, right? So I will get the shares. This person will get the money. So what Bombay Stock Exchange is going to do? Bombay Stock Exchange would say, Anand, you have purchased 1000 shares at the rate 245 each. So please pay 2,45,000 rupees to me. This amount will be taken from me. This will be given to this seller. And from this particular seller, 1000 shares of ITC will be taken and this will be credited into my Demat account. Of course, Bombay Stock Exchange through its broker will charge some commission both from the buyer as well as from the seller. So how is this possible? This is possible only through the stock exchange. It is quite possible that the buyer is in Mumbai and the seller is somewhere in Tripura. Okay. Now, do you think physically it would have been possible for these two persons to meet and do the exchange? Answer is no. Forget Tripura. Even if both of them would have been in Mumbai, then also it would not have been impossible. This person is in Andheri East and this person is in Andheri West. Even then it would not have been possible for both of them to meet, because I don't know. There are so many people. There are so many people who want to buy. There are so many people who want to sell the shares. I don't know. I'll not go out on the street like that movie वेलकम मूवी, उसमें नाना पाटेकर करता है ना, आलू ले लो, तो मैं वैसे थोड़ी ना करूंगा, आईटीसी ले लो, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स इशू इज सेइंग माय नेम इज खान की तरह मैं बोर्ड लेके ले जाऊंगा, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय 1000 शेयर्स प्लीज गिव मी, राइट? ऐसे थोड़ी ना होगा. सो ये स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर क्या करेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप क्या कर सको, शेयर्स को परचेज कर सको, सेल कर सको. इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर
इंटरनेशनल फंडिंग. नाउ व्हाई डू आई से इंटरनेशनल फंडिंग यहाँ पर कैसे आता है? बिकॉज जब आप बात करते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पे कौन से तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं? देखो यहाँ पर देसी इन्वेस्टर्स तो होंगे होंगे. देसी इन्वेस्टर्स मींस वी resident investors. You will also get NRIs, Priyanka Chopra. Okay, you will also get Priyanka Chopra invest. She is an NRI now, right? So you'll get them. Plus, you will also get investors who are non-residents, who are foreign investors, right? Let's say Deutsche Bank, or let's say DSP Merrill Lynch. Okay, then you can pick up any other foreign institutional. There are many foreign institutional investors. You see SoftBank Japan, right? There are so many foreign institutional investors. So where they are going to invest? See, these foreign investors, they don't know me, but they know that there is a stock exchange called as Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, and my company is listed here. So through this stock exchange, they will also get to know about my company. They'll get to know that yes, this company exists. And then in that case, they are going to do the research about my company, because I will be giving a lot of informations to the stock exchange. So based on that, these investors, they are going to get to know about my company, and then they are going to purchase the shares of my company. So it also provides a platform for the international listing. Guys, does this make sense? Does this make sense? So when I say international funding, you get the foreign investors. You attract foreign investors through the stock exchange. आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा FII ने बहुत ज्यादा परचेज किया है. ये सुना आपने? FII का बहुत ज्यादा परचेज हुआ. आज स्टॉक मार्केट उछाल खा गया क्योंकि FII ने बहुत परचेज किया. So that's because of the international funding here, right? Then next, if you see capital market. So capital market is basically your securities market and the debt market. And it is basically a market where funds are raised by the company for long-term projects. अब कैपिटल मार्केट के लिए अगर आप यहां पर चेक करो तो कैपिटल मार्केट में इसका नीड या आप इसके फीचर्स को देख लो तो आप ये देखो, इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर द इकोनॉमी. क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अगर पैसे चाहिए तो वो पैसा आपको कहाँ मिलेगा? वो पैसा आपको मिलेगा थ्रू द कैपिटल मार्केट ओनली, है कि नहीं? देन अगर आप यहाँ पर चेक करो नेक्स्ट, इट मोबिलाइजेस द फंड्स टू द बिजनेस. करेक्ट. तो जो भी बिजनेसेस है उनको फंड्स अगर चाहिए तो वो आपको कहाँ पर मिलता है? कैपिटल मार्केट से वो पैसा रेज करते हैं. सी अभी राइट इशू आया, एयरटेल का राइट इशू लेगा, तो राइट इशू को वो क्यों लेकर है? क्योंकि उनको पैसा चाहिए. सिमिलरली रिलायंस ऑल्सो केम अप विद अ राइट इशू लास्ट ईयर. क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे फंड्स चाहिए. तो कैपिटल मार्केट से वो पैसे को रेज करते हैं और फिर वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा प्रोवाइड रूट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. आप में से अभी कितने लोग अगर रेगुलर न्यूज को ट्रैक कर रहे हो तो आपको एक वर्ड बार बार दिख रहा होगा, एसेट मोनेटाइजेशन. देख रहे हो? ओपोजिशन बहुत बोल रहा है कि देश को बेच दिया, मोदी सरकार ने देश को बेच दिया. वेरएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके वो बता रहे हैं कि हम एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, हम बेच नहीं रहे, हम एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली देखो, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है. सी, एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेट्स से एयर इंडिया. हु प्रोवाइड्स फंडिंग इन एयर इंडिया? इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी. तो इसमें फंडिंग भी कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट. आपने कई बार ऐसा न्यूज सुना होगा कि एयर इंडिया को बंद कर दो, टैक्स पेयर का पैसा डूब जाता है इसमें. एयर इंडिया में 6,000 करोड़ का लॉस है, 5,000 करोड़ का लॉस है, इतना लॉस है, उतना लॉस है, टैक्स पेयर का पैसा वहां पे डूब रहा है. क्या फायदा? ऐसे कंपनी को बंद कर दो. ऐसा सुना है? शुभम बोलते हैं हाँ ऐसा सुना है, राइट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा,
क्यों बंद कर दो? क्योंकि देखो एयर इंडिया प्रॉफिट तो दे नहीं रहा, एयर इंडिया लॉसेस दे रहा है। सी एयर इंडिया में क्या हो रहा है, देखो आपका एक बिजनेस है, उस एक बिजनेस से आपको प्रॉफिट आना चाहिए, है कि नहीं? यू शुड गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा है दैट लॉसेस कैन बी बोर्न इन शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग रन नो बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन लॉसेस, है कि नहीं? बेसिक इकोनॉमिक्स टूल। तो एयर इंडिया में काफी टाइम से लॉसेस ही आ रहा है, प्रॉफिट आ नहीं रहा। तो गवर्नमेंट इस लॉसेस का भी, देखो कोई ना कोई तो ये लॉस को उठाएगा, कोई ना कोई तो भरपाई करेगा इस लॉस का। तो इस लॉस का भरपाई कहां से होता है? टैक्स पेयर्स के पैसों से। ठीक है, अगर सपोज करो एयर इंडिया में 500 करोड़ का लॉस हुआ, तो ये 500 करोड़ का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि इनके रेवेन्यूज जो है वो कम है एज कंपेयर टू देयर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में आप अगर देखो, इनका फ्यूल कॉस्ट है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, पायलट्स की सैलरी है, और भी बाकी सारे एक्सपेंसेस जो रहते हैं। तो ये एक्सपेंसेस किसके पॉकेट से पे किया जाता है? कोई ना कोई तो इसको पे कर रहा होगा ना। तो इट इज बीइंग पेड आउट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी। तो यहाँ पर इस तरह से बोला जाता है कि यार ये जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में इतने ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो सारे के सारे लॉसेस हम क्यों बेयर करें? इस कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर दो। डिसइन्वेस्ट करने से क्या होगा? इसमें फ्रेश कैपिटल आएगा और काफी नया एक्सपर्टीज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा और हम इसको यहाँ पर बेचेंगे। सो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? डिसइन्वेस्ट कैसे करेंगे? देखो, नहीं बंद नहीं करेंगे, एग्जैक्टली exactly, बंद नहीं करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है हम कुछ स्टेक यहां पर बेच देंगे। हम यहां पर कुछ स्टेक बेच देंगे। अभी अगर 100% शेयर्स मेरे पास है, मैं कौन हूं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 30% स्टेक बेच दूंगा। 30% स्टेक मैं यहाँ पे बेच दूंगा और 30% स्टेक मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बेचूंगा। 30% में यहाँ पर फ्रेश पब्लिक जो है वो पैसा लगाएगी। अब ये जो 30% स्टेक, इसको बेचकर मेरे को पैसा मिलेगा, उस अमाउंट से मैं बिजनेस को यहाँ पर ग्रो करूंगा, या फिर यू कैन से आई विल फंड सम अदर प्रोजेक्ट, वट एवर द केस में बी, राइट? सो ये वाला केस होता है। तो गवर्नमेंट अगर अपना यहाँ पर किसी बिजनेस के अंदर स्टेक को बेचना चाहे, तो वो कहां पर हो सकता है? डिसइन्वेस्टमेंट्स यहीं पर हो सकता है। अभी जैसे न्यूज आ रहा है कि रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट वांट्स टू डू डिसइन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के शेयर्स को आप कहां पर बेचोगे? घर घर जाके बेचोगे, ए रेलवे 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 रेलवे? नहीं, आप क्या करोगे? आप शेयर्स को ले जाकर मार्केट में बेचोगे, स्टॉक एक्सचेंज में। आप प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इशू लाओगे। फिर आप देखो, इट प्रोवाइड्स अ मीडियम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बाय अलाउिंग द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इन द इकोनॉमी। आप सब ने वो प्रोवर्ब सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सुना आपने? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब होता है? कि सारे के सारे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ही जगह लगा के मत रखो। क्यों? क्योंकि कल को अगर वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डूब गया तो क्या होगा? आपको काफी ज्यादा लॉस होगा। करेक्ट? तो यहां पर इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब, वो आपने वो वाला गाना सुना है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना दो, डीजे वाले बाबू? तो डाइवर्सिफिकेशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट सॉन्ग ओनली। ठीक है, दैट द ब्रोकर वाले बाबू या एडवाइजर वाले बाबू मेरा रिस्क घटा दो, रिस्क घटा दो। तो वो फिर आपको क्या बताएगा? रिस्क तेरा मैं घटा दूं, अलग अलग शेयर्स मैं दिला दूं, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर वही होता है कि आप डाइवर्सिफाई करते हो रिस्क को, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर के शेयर्स को परचेज करते हो। यू डोंट परचेज द शेयर्स ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर सेक्टर। आप क्या करोगे? आप एक ऐसे कंपनी के शेयर को लोगे जिसमें, देखो डॉलर जो है वो ऊपर भी जा सकता है, डॉलर नीचे भी जा सकता है। कुछ कंपनीज को डॉलर ऊपर जाने पे फायदा होगा। अगर मैं एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी हूं और आज $1 का रेट है, लेट्स से $1 इज इक्वल टू लेट्स से 70 रुपीज, ये 80 अगर हो गया तो मुझे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? बिकॉज आप देखो, मेरे को डॉलर से पेमेंट आना है, ठीक है? जब मेरे को डॉलर से पेमेंट आएगा, तो फॉर द सेम
लेट्स से मेरे को यूट्यूब $1000 पे करेगा, तो $1000 के लिए जहां मेरे को पहले 70,000 रुपए मिलने थे, वहां अब मुझे कितने मिलेंगे? 80,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी को डॉलर में पेमेंट करना है, तो $1000 के लिए जहां उसको 70,000 पे करना था, वहां अब उसको 80,000 पे करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे कंपनीज में पैसा लगाऊंगा। एक वैसी कंपनी में भी पैसा लगा दूंगा जिसमें डॉलर से फायदा हो, एक बेसिकली एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी में भी पैसा लगाऊंगा, एक इंपोर्ट बेस्ड में भी लगा दूंगा, एक लेट्स से टेलीकॉम सेक्टर में लगा दूंगा, एक मैं बोलता हूँ चलो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी पैसा लगा दूंगा, एक मैं बोलता हूँ एफएमसीजी में भी पैसा लगा देता हूँ, जैसे कि आईटीसी, डाबर, ठीक है, ऐसे कंपनीज में भी लगाता हूँ। भाई कुछ भी हो जाए, आटा चावल, ये तो देखो लॉकडाउन में कुछ भी हो, दो दुकान बंद नहीं हुआ था, एक तो फार्मेसी और दूसरा किराने का दुकान, है कि नहीं? ये दो कभी भी बंद नहीं हुआ था और ये दो कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला, राइट? सो ये बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन मैं कैसे सेट करता हूँ, बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर कंपनीज। ये कैसे पॉसिबल होगा? दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल थ्रू द कैपिटल मार्केट ओनली। अब इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स करेंसी फॉर एक्विजिशन वाया शेयर स्वैप। अब इसका मतलब आप समझो यहाँ पे क्या है। देखो, रिलायंस को गूगल के शेयर्स परचेज करने हैं, ठीक है, रिलायंस को गूगल के शेयर्स परचेज करने हैं, और गूगल के शेयर्स परचेज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली उनको डॉलर पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे समृद्धि ने पूछा था कि सर अगर फॉरेन कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है तो कौन से करेंसी में पे करना होगा? डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब आप देखो, कोई भी नहीं चाहता कि रुपया देना हो। देखो हम सब ने 8 नवंबर 2016 वाला दिन देखा है, याद है कि नहीं? क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 और 8 बजे? मित्रों, करेक्ट, डीमोनेटाइजेशन, राइट? तो आप देखो यहां पर, आप देखो इस समय क्या सिनेरियो था। क्या आप सबके अकाउंट में कैश थे कि नहीं थे? आप सबके अकाउंट में कैश थे, ठीक है, आप सबके अकाउंट में कैश थे, लेकिन फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, है कि नहीं? करेक्ट। हर जगह डेबिट कार्ड नहीं चल रहा था, गूगल पे, पेटीएम उस वक्त इतना फेमस नहीं था, सो यू ऑल हैड मनी बट यू वर नॉट एबल टू यूज। सो एवरीवन वांट्स टू सेव ऑन देयर कैश, ठीक है, कैश का जो बैलेंस है वो हर कोई सेव करना चाहता है। तो यहां पर आप क्या करते हो, रिलायंस wants to purchase the shares of Google. Now there are multiple ways with which it can purchase. रिलायंस यहाँ पे बोल सकता है ये लो डॉलर और आप बदले में मेरे को दे दो शेयर्स, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, रिलायंस कैन ऑफर इट्स ओन शेयर्स टू गूगल एंड देन परचेज द शेयर्स ऑफ गूगल, है। सो कंपनी कैन बाय अदर कंपनीज शेयर्स बट बाय नॉट पेइंग इट इन कैश, बट बाय नॉट पेइंग इट इन कैश, बाय शेयर्स, शेयर के बदले शेयर, उसको हम बोलते हैं शेयर स्वैप। ये आया समझ में? शेयर्स के बदले शेयर्स, इसको हम बोलते हैं शेयर स्वैप। इज दिस क्लियर? ये वाला जो पॉइंट है मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज ओके। सो यू आर गेटिंग द शेयर्स ऑफ गूगल, but in return you are paying shares of, let's say, रिलायंस। बताइए जी, इज दिस क्लियर? सर ये सब हम इफ रनिंग नोट्स बना के लिखेंगे तो चलेगा। ये आपको मैं वैसे भी स्लाइड्स का एक्सेस दे दूंगा, आपका ईमेल आईडी मैंने लिया ही इसलिए है, ठीक है, आपका ईमेल आईडी मैंने लिया ही इसीलिए, तो ये सब आपको स्लाइड्स में वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जैसे मन इसको आप लिखो, चलेगा। अभी आप कुछ भी नोट डाउन मत करो व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो, प्लीज डू नॉट नोट डाउन एनीथिंग। अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे पूरा फोकस रखो। समृद्धि ने यहाँ पे बोला है सर री एक्सप्लेन, देखो री एक्सप्लेन वापस कर देता हूँ, सिंपल सा पॉइंट, जस्ट सी दिस, देयर इज कंपनी ए, ओके, दिस कंपनी ए wants to purchase the shares of company B,
Make sense? There is a company A, Samruddhi. There is company A. It wants to purchase the shares of company B. What are the different ways? Company A यहां पर जाएगा और मनी पे करेगा. इट कैन बी रुपी और इट कैन बी डॉलर, जो भी यहां पर होगा. मतलब इट इज गोइंग टू पे मनी एंड इट विल बाय द शेयर्स. करेक्ट? दिस इज वन वे. What is the other way? Company A wants to buy shares of company B. So company A will say, we will give you our company's share, you give me your company's share. इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर स्वैप. तो यहाँ पे कंपनी ए का शेयर्स जाएगा और बदले में यहाँ पर कंपनी बी के शेयर्स आ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज शेयर स्वैप अग्रीमेंट. मेक सेंस? इसमें फायदा क्या होता है? यू बाय द शेयर्स बट आप कैश बचा लेते हो. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. देखो यहां पर रेशो होगा. अब देखो शेयर स्वैप जब करेंगे तो यहां पर एक रेशो डिसाइड किया जाएगा. देखो इस तरह से होगा. सपोज ये शेयर का वैल्यू है 500, ये शेयर का वैल्यू है 100. तो आप मुझे बताओ ये स्वैप रेशो कैसे होगा? कंपनी ए विल से दैट आई विल गिव 1 शेयर. ओके, I will give 1 share and in return I will get 5 shares of your company. Yes or no? हाँ, तो सिंपल ये रेशियो आपका सेट हो जाएगा. एंड सपोज कंपनी बी का वैल्यूएशन 1000 है. सो कंपनी ए विल से आई एम गोइंग टू गिव 2 शेयर्स एंड इन रिटर्न आई विल गेट 1 शेयर. तो ये स्वैप रेशियो डेफिनेटली डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. ओके. It also mobilizes the resources for investment, जो मैंने आपको बताया, household savings. ठीक है, सेविंग से पैसा यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आता है. Then if you see, it also facilitates trading of the securities. Company has already issued the shares. Today, if I want the shares of the company, what should be done? So I'll get it this way. Then further, अगर आप देखो settlement of the trade. So I have purchased the shares. Someone has sold the shares. I have paid the money. Someone needs to get the money. All this is done through the capital market only. Then if you see, it also ensures a fair trade. So no, it doesn't happen that I have sold the shares, okay, but the money is not received, or if I have paid the money, the shares are not received, or I have received fake share certificates. So it ensures that there is a proper fair trade. Also, if you connect this with the insider trading, कि इंसाइडर ट्रेडिंग भी यहाँ पर नहीं होगा. दैट्स द फेयर ट्रेड हियर. प्राइस डिस्कवरी ऑफ द शेयर्स एंड द सिक्योरिटीज, बिकॉज यहाँ पर जो ये प्राइस डिस्कवरी होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन ऑल थ्रू योर डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. राइट? तो जिस भी कंपनी का डिमांड ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो अप. सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, द प्राइस विल गो डाउन. सो दिस इज प्राइस डिस्कवरी. सो ये आपके पास कैपिटल मार्केट है. इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे आपके पास 8-10 बुलेट पॉइंट्स डिस्कस किया है, दिस यू कैन से द नीड और यू कैन ऑल्सो से द फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, इज दिस क्लियर? यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, राइट, मनी मार्केट के लिए. चलिए नेक्स्ट अब हम यहां पर देखते हैं. सो नेक्स्ट यहां पर आपके पास आता है द मार्केट रेगुलेशंस. देखो जब भी आप एज कंपनी सेक्रेटरी अगर आप देखो तो एज कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों के लिए 4 एक्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. There are 4 acts which are extremely important for all of you. Okay, Samruddhi is saying it's interesting. Indeed it is. आपको बहुत मजा भी आएगा लॉन्ग रन में. जैसे जैसे इसको पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा. एंड लाइक आई से, मेरे लिए तो इट इज लाइक यू नो डीएनए के अंदर मेरा आर्टरीज और वेन्स में सिक्योरिटीज लॉ ही आपको मिलेगा. एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो आप यहाँ पे देखो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एन एक्ट
फिर रूल्स रेगुलेशंस, हमने उसका पूरा बाइफर्केशन पढ़ा था, करेक्ट? ओके, तो अब आप यहां पे देखो, आपके पास आता है the market regulations, right? But don't get carried away by the word regulations. I mean by the act only. तो market regulations में आप देखो, सबसे पहले आपके पास है Companies Act. Now, what is the role of Companies Act? Companies Act provides you the basis for the issue of shares, right? Transfer of shares, allotment of shares. ये सब कहां पर होगा? All this is going to happen through the Companies Act. सेकेंड एक्ट जो आपको यहां पर मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी सेबी एक्ट. सेबी एक्ट का क्या रोल है? देखो, सेबी एक्ट के अंदर यू आर गोइंग टू गेट थ्री थिंग्स. वन इज दे हैव टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, देन they have to develop the securities market, and they also have to regulate the securities market. ये तीन रोल आपको मिलेगा. किसका? ये तीन रोल है आपके पास सेबी एक्ट का. ओके, फिर आप देखिए यहां पर आपके पास आता है कंपनीज एक्ट. ओके, तो कंपनीज एक्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इट सेट्स आउट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ शेयर्स, द अलॉटमेंट, द ट्रांसफर of the securities, and all these things you are going to get it under the Companies Act. By the way, जब आप कंपनी लॉ पढ़ो, ठीक है, कंपनी लॉ के अंदर प्लीज चेक सेक्शन 24. Section 24 of the Companies Act. This Section 24 connects your company law to securities law. Okay, it is because of Section 24 the Companies Act and SEBI Act it gets connected. Next, अगर आप यहां पे देखो तो आपको दिखेगा, sir, I have an app and it has all about the Companies Act. Okay, see, in that app you will get about the Companies Act. Okay, it is a bare act, but one is bare act and then you have the detailed analysis of the section. So section 24 analysis is more important. Okay, bare reading of section 24 से नहीं होगा. The history of section 24, why section 24 is there, okay, all these things. और उसका impact क्या होगा? What is the impact? What if section 24 नहीं होता तो क्या होता? ओके, तो आप यहाँ पे चेक करना. इट्स गुड दैट यू हैव अ एक्ट, द ऐप फॉर दिस कंपनीज एक्ट. बहुत कम स्टूडेंट्स के पास ऐसा होता है. तो बेयर एक्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यू शुड ऑलवेज रेफर लाइक दैट, राइट? ओके, इशू बोलती है उनके पास भी है. वेरी वेरी गुड. आई विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि आप सिक्योरिटीज लॉ, कंपनीज एक्ट, सारे के सारे एक्ट को कैसे एक जगह कंपाइल करके अपने पास रख सकते हो. You don't even need a app for that. I will give you an idea. I also do the same thing, right? आपको मैं उसका भी तरीका किसी और दिन बताऊंगा यहाँ पे. चलिए, so next is your Depositories Act. और Depositories Act का यहाँ पर काम क्या होता है? Like I mentioned, जो पहले पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे, अब वो पेपर सर्टिफिकेट्स चेंज हो गए. आज के डेट में सब क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिकली हो गया. सो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस एंड ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, ये आपको कहाँ मिलेगा? अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट. और लास्ट आपको यहाँ पर दिखेगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. तो यहाँ पे आप देखो SCRA, इट सेट्स आउट द regulations for the transaction in the securities and in the market control via stock exchange. तो stock exchange के जितने भी rules आपके पास है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? SCRA. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चार एक्ट तो आपको वैसे भी बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें से ये तीन एक्ट 2, 3 एंड 4, ये तो आपको मैं इसी अपने सिलेबस के अंदर ही पढ़ा दूंगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे. कंपनीज एक्ट डेफिनेटली आप अपने ग्रुप 1 के अंदर पढ़ोगे. तो ये हुआ आपका चार एक्ट. इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे लॉज हैं जो पता होना चाहिए. जैसे कि एक आपके पास आ जाएगा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट, ये आपको कहां पर मिलेगा? दिस यू आर गोइंग टू गेट इन योर ईबीसीएल, तो फेमा आप यहाँ पे पढ़ोगे। इसके अलावा आपको आरबीआई एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, फेमा, देन आरबीआई एक्ट, देन अगर आप देखो तो देर आर मल्टीपल्स, बट आपको कुछ एजेंसीज के बारे में भी पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट सम ऑफ द एजेंसीज, और आई वुड से द रेगुलेटर्स, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ, फिर आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए, देन द स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर पता होना होगा। आईआरडीआई का यूज नहीं है, आईआरडीआई इंश्योरेंस से आ गया, मैं मार्केट, कंपनी मार्केट से रिलेटेड डील कर रहा हूँ। आईआरडीआई इंश्योरेंस कंपनीज को ही डील करेगा, बट ये जो भी आपके पास रूल्स है ये सब आपके मार्केट को डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज। ओके, एनसीएलटी, एनसीएलटी, ये अगर आप देखो तो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, देन एनसीएलटी और एनसीएलएडी, तो लिटिगेशंस होने पे आप इनके पास जाओगे, ये भी डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं सेबी के बारे में। तो ये सेबी का बिल्डिंग है, बीकेसी में आपको दिखेगा इसका बिल्डिंग, ठीक है, ऑफिस। तो दिस इज द सेबी बिल्डिंग देयर। और सेबी जो है, देखो, इवन दो सेबी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1992, ओके, द सेबी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1992, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो सेबी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था इन द ईयर 1988। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988, but it was given the regulatory powers, okay, in the year 1992 when the SEBI Act was passed. This is a designated regulatory body for the finance and investment market in India, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। तो जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे सेबी एक्ट का, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको आप लिंक करोगे विद द प्रियम्बल ऑफ सेबी एक्ट। व्हाट इज प्रियम्बल? व्हाट इज प्रियम्बल? व्हाट इज प्रियम्बल? Samruddhi is asking why the gap of 4 years. So before SEBI, you had CCI, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। देखो, मार्केट में कुछ भी अगर चेंज आना होता है ना, तो देयर हैज टू बी सम इवेंट, उसके बाद में वो चेंज आना शुरू होता है, ठीक है, उससे पहले सब वैसे ही रहता है। तो 1992 में जब ये 1991 के अंदर आप देखो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जब हुआ, चीजें चेंज हुई एंड वी रियलाइज दैट नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो फिर यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया, एंड दैट्स हाउ सेबी केम इनटू पिक्चर। ओके, प्रियम्बल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज गिव्स द इंट्रो। तो लॉ में अगर प्रियम्बल आप देखो तो इट प्रोवाइड्स द पर्पस, ओके, इट प्रोवाइड्स द पर्पस कि ये क्यों है, ये एक्ट क्यों आया। विल सी द प्रियम्बल ऑफ द सेबी एक्ट व्हेन वी स्टडी दैट। देन इट हैज गॉट थ्री पावर्स। एक इसके पास क्या है, इट हैज अ पावर ऑफ क्वासाई जुडिशियल, देन यू हैव क्वासाई लेजिस्लेटिव, एंड यू हैव क्वासाई एग्जीक्यूटिव। देखो, पहले तो आप यहाँ पे तीन चीजों का मतलब समझो। आप मुझे बताओ, व्हेन आई से लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब होता है? लेजिस्लेटिव पावर मीन्स टू मेक द लॉ। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स टू मेक द लॉ, यही बता रहा हूं मैं। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स टू मेक द लॉ। फिर आता है आपके पास एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स पावर टू इंप्लीमेंट द लॉ, ओके। और फिर आपके पास आता है जुडिशियल पावर, दिस इज टू इंटरप्रेट द लॉ, एंड अगेन डिस्प्यूट्स, ठीक।
आप एक सिंपल एग्जांपल लो, इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इन तीनों का बाइफर्केशन करके रखा हुआ है, एंड दैट इज द रीजन तीनों चीज आपको किसी एक जगह नहीं मिलेगा। इफ यू सी, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। इट इज द पार्लियामेंट विच मेक्स द लॉ। देन यू हैव द अथॉरिटीज which executes the law, and then you have the high court, supreme court, which does the judicial work. Yes or no? ऐसा ही होता है ना? आप देखो, 3 farm laws were made by the parliament, CAA passed by the parliament, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए ये पता करने के लिए कि ये लॉ बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला रहता है। अब आपने जब जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का मतलब समझा, अब आप इस वर्ड का मतलब समझो, क्वासाई। क्वासाई का क्या मतलब होता है? क्या आपने ईटी के अंदर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था इन योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या होता है क्वासाई? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासाई मींस इट इज just like but not exactly same. Do you all know Herman Baweja, Love Story 2050? हरमन बवेजा नहीं जानते हो? ओके, हरमन बवेजा लुक्स लाइक ऋतिक रोशन, बट ही इज नॉट ऋतिक रोशन। सो आप उसको क्या कहोगे? ही इज क्वासाई ऋतिक रोशन। ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये देखो, क्वासाई मींस जस्ट लाइक बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। क्वासाई का ये मतलब होता है। नाउ सेबी हैज बीन गिवन अ क्वासाई लेजिस्लेटिव पावर, क्वासाई एग्जीक्यूटिव पावर एंड क्वासाई जुडिशियल पावर। मतलब सेबी चुलबुल पांडे की तरह आएगा और क्या बोलेगा? आई, मी एंड माई सेल्फ। मतलब मैं अपने रेगुलेशंस खुद बनाऊंगा, उसको इंप्लीमेंट भी मैं खुद करूंगा, और उसका इंटरप्रिटेशन और डिस्प्यूट भी मैं हैंडल करूंगा। आया आपको समझ में गाइस? आया समझ में? सेबी विल हैव द क्वासाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। मतलब एब्सोल्यूट पावर नहीं मिला। एब्सोल्यूट पावर क्यों नहीं मिला? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। बट सेबी विल हैव द क्वासाई जुडिशियल पावर, क्वासाई एग्जीक्यूटिव पावर एंड क्वासाई लेजिस्लेटिव पावर। तो सर फिर तो सेबी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, है कि नहीं? सेबी अपने ही फेवर में इंटरप्रिटेशन देगा। द एंटायर रीजन कि ये तीनों को अलग अलग रखना था क्योंकि वी वांटेड सेग्रीगेशन ऑफ पावर। सब इंसान अगर एक ही काम करेगा तो सर फिर तो गड़बड़ है, वो तो फिर डिक्टेटरशिप जैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए सेबी, सबसे पहले सेबी खुद इंटरप्रेट करेगा और सेबी अपना ऑर्डर पास करेगा। अगर आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो और आप जा सकते हो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल पे। अगर आप सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। बट यस, सेबी के पास ये तीनों पावर है, एंड क्वासाई लेजिस्लेटिव, क्वासाई एग्जीक्यूटिव एंड क्वासाई जुडिशियल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पार्ट? ओके, इफ यू ऑल वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, आपको नहीं मिलेगा। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, डन। डन। ओके, तो ये पार्ट आता है आपके पास। सर जो आप लिख के समझाते हो उसका रनिंग नोट्स ले सकते हैं। आपको क्यों रनिंग नोट्स नहीं रहा है? जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
ये सब यहाँ पर है, जो काम का है वो सब यहाँ पे है, जो भी काम का है वो सब यहाँ पे है, डोंट वरी। और जब आप इन नोट्स को, अपना खुद का नोट्स जब आप बनाओगे, बिलीव मी, अभी तक जो मेरे को फीडबैक मिलता है स्टूडेंट से, वो बोलते हैं सर आपका लेक्चर रिपीट होता है दिमाग में। ठीक है, आपका लेक्चर रिपीट होते रहता है दिमाग में। तो जो काम की चीज है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब मैंने डिलीट कर दिया। जो जो काम का चीज है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी सब चीजों को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, जो अननेसेसरीली यहाँ पर डेटा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अगर आपके पास रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद नहीं रखना, तो आपको परेशान नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, ये देखो यही क्वासाई जुडिशियल एंड क्वासाई लेजिस्लेटिव एंड क्वासाई एग्जीक्यूटिव का बताया हुआ है कि उसके पास पावर है, इट हैज अ राइट टू ड्राफ्ट द रेगुलेशन in the legislative capacity. It can also conduct the investigation and impose the action in the executive function, and it can also pass the orders under the judicial capacity. फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक आ जाता है, हालांकि ये आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं है, ठीक है, बट आई स्टिल बिलीव ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, आईएसको। आईएसको का क्या मतलब होता है, देखो इट इज बेसिकली, ये मैं यहाँ पे आपको क्विकली लेकर आ जाता हूँ। देखो आईएसको यहाँ पर क्या है, इट इज जैसे हाउ डू आई से, यूनाइटेड नेशंस है ना, आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस के साथ बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो कनेक्टेड है। वैसे ही आप देखो, दिस इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो हर कंट्री का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, ओके, द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, ये रेगुलेटर मैं लिख देता हूं, रेगुलेटर ऑफ द कंट्री विल बिकम द मेंबर ऑफ आईएसको। तो सेबी जैसे है, सेबी वहां पर बन गया, ऐसे ही अगर आप यूएसए का चेक करोगे तो यूएसए का सेबी कौन है, दैट इज एसईसी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो इस तरह से करके ये पूरा वर्कआउट करता है। तो ये आप बस खाली ध्यान रख लेना, इसके तीन तरह के मेंबरशिप होते हैं। देखो ये बेसिकली, एक होता है आपके पास ऑर्डिनरी मेंबरशिप, एक होता है एसोसिएट, एक होता है एफिलिएट मेंबरशिप। एंड देन इफ यू सी हियर, तो आपको ये दिखेगा इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर इफेक्ट फेयर एंड एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मार्केट रहे, रिस्क को रिड्यूस करके रखे, और प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। आपस में कल को सेबी और एसईसी आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो वो किसके तहत करेंगे, वो इसी के तहत शेयर करेंगे, आईएसको के तहत, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने साइन करके रखा हुआ है, वहां पर इनको पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज देयर। तो ये अगर आप इतना डिटेल नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, बट जस्ट यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ब्रॉडली तीन कैटेगरी में स्प्लिट होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्योर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, और तीसरा होता है डेरिवेटिव्स। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, बहुत सारा इसमें से आपको ऑलरेडी आता भी होगा और कुछ कुछ यहाँ पर आपको नया सीखने को मिलेगा। सी, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्योर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्योर इंस्ट्रूमेंट वो जो बेसिकली किसी एक सिक्योरिटी का ही फीचर रखेगा, इट हैज द फीचर ऑफ ओनली वन सिक्योरिटी, it has the feature of only one security। ये हो गया प्योर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स में ब्रॉडली आपको यहां पर क्या मिलेगा, यू विल गेट डेट, यू विल गेट इक्विटी, यू विल गेट प्रेफरेंस। ये हो गया आपके लिए प्योर इंस्ट्रूमेंट्स। ये आ रहा है आपको समझ में, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स इट वाज गोइंग टू हैव अ फीचर ऑफ ओनली वन सिक्योरिटी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, तो ये आपके लिए क्या हो गया, दिस इज अ प्योर इंस्ट्रूमेंट।
अच्छा, आप मुझे बताओ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये भी प्योर इंस्ट्रूमेंट है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये भी प्योर इंस्ट्रूमेंट है? सो आंसर यस, नो, यस, नो, दोनों आ रहा है। ओके, नो। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा नो। वाई? बिकॉज ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इसमें दो फीचर्स है। ये प्रेफरेंस है और बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन से में फॉल करेगा? दिस विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड। ओके, तो ये प्योर नहीं है, ये फॉल करेगा इनटू द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड मतलब दो का मिक्सचर, दो सिक्योरिटी का मिक्सचर इज हाइब्रिड। Or you can say any security which will be convertible into equity shares, that will be what? That will be considered as hybrid. तो अब आप प्योर इंस्ट्रूमेंट्स में देखो, तो यहां पर आप देखो इक्विटी शेयर्स आपके पास आएगा। दीज आर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, फ्रैक्शनल ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके पास भी शेयर्स है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, प्रोवाइडेड उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में हो और उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। नॉर्मली वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। सबसे ज्यादा रिस्क ये लोग उठाते हैं, अनलिमिटेड रिस्क, और रिटर्न भी सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलता है। अनलिमिटेड रिस्क तो अनलिमिटेड रिटर्न। इनके लिए डिविडेंड डिमांड किया नहीं जा सकता, ठीक है? दे कैन नॉट डिमांड डिविडेंड। ऑफ कोर्स डिविडेंड कैन बी पेड टू देम अपॉन द प्रपोजल मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेम वे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दे हैव द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। और दो तरह का इनको प्रेफरेंस मिलता है। वन इज राइट टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड राइट ऑफ द कैपिटल रीपेमेंट अपॉन द वाइंडिंग अप। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, एक्सेप्शंस आर देयर। और एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्ट सेक्शन 47, एक्सेप्ट सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब 2 साल तक लगातार आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे करते, तो उनको फिर सब वोटिंग राइट्स मिल जाता है। इनका लिमिटेड रिस्क होता है, इसीलिए लिमिटेड रिटर्न मिलता है। और कंपनी को पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना चाहते हैं तो। एंड at the time of issue of preference shares, the company should not have defaulted, or there should be no default, subsisting default of the existing preference shares. तो ऑलरेडी जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर तो आपने डिफॉल्ट कर रखा है, और अभी आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रहे हो, गलत बात, नॉट अलाउड। तो ये आपके पास आ गया इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या एक कंपनी के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर्स हो सकता है? कैन अ कंपनी हैव इक्विटी शेयर्स ओनली? मैं आपसे दो क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा। कैन अ कंपनी हैव जस्ट इक्विटी शेयर्स और जस्ट प्रेफरेंस शेयर्स? आंसर इज यस एंड नो। अ कंपनी कैन हैव जस्ट इक्विटी शेयर, but a company cannot have just preference share. Why a company cannot have just have preference share? इसका सिंपल रीजन है, आप ये देखो, preference is preference over equity. So if there is no equity, there is no preference. आप टेक्निकली अगर देखो तो इक्विटी वाला जो है वो लास्ट में आता है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये आते हैं सेकंड लास्ट। करेक्ट? तो अगर इक्विटी होगा ही नहीं तो टेक्निकली तो यही लास्ट हो जाएंगे, फिर काय का प्रेफरेंस? आया आपको समझ में? आया समझ में? सी इफ आई हैव टू वाइफ, सॉरी मैं घर पे पढ़ा रहा हूं, एनीवे एग्जांपल आप देखो, इफ आई हैव टू वाइफ ए एंड बी, देन देयर कैन बी अ डिस्प्यूट, राइट? या कई बार आप देखते हो वो फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, माय बेस्ट हस्बैंड,
माई बेस्ट वाइफ, माई बेस्ट फादर। अब एक बात बताओ, बेस्ट तो एक सुपरलेटिव हो गया ना, मतलब देयर इज समवन हु इज बेटर एंड देयर इज समवन हु इज गुड, तभी तो बेस्ट आया। आया आपको समझ में? सो प्रेफरेंस इज यू आर गिविंग प्रेफरेंस. सो इफ आई हैव टू वाइफ, then I can say I'm giving preference to her over her. But if I have only one wife, फिर तो ये बात ही खत्म हो गया ना कि मैं किसको किसके अगेंस्ट प्रेफरेंस दे रहा हूं, जो है एक ही है. एंड माई वाइफ हैज जस्ट अराइव्ड इनटू द रूम. ऐसे एग्जाम्पल इसीलिए घर पे नहीं देना चाहिए. एनीवे, आज का लेक्चर एक्सटेंड होएगा टिल द टाइम माई वाइफ फॉरगेट्स दिस एग्जाम्पल. बाय द वे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑन अ सीरियस नोट, राइट? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं ये जो हस्बैंड वाइफ वाले एग्जाम्पल से इनको पहले डिलीट कर देता हूं, राइट? ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप इसका स्क्रीनशॉट रखो और ये कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करके रख लेना. ओके, सो ये आपके पास था इक्विटी एंड प्रेफरेंस, राइट? इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो. यू विल बी अगेन स्टडिंग इन द कंपनी लॉ ऑल्सो. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, then convertible, redeemable, participating, non-participating. So this is on the basis of the accumulation of dividend. This is on the basis of returning the capital, and this is on the basis of the participating right. अब देखो, क्यूमुलेटिव वाले का क्या मतलब होता है? किसी साल अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुए तो क्या होगा? वो हम बोलते हैं ना, खाते में लिख लो. तो प्रेफरेंस डिविडेंड खाते में लिख लिया जाएगा और अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो मेरे को डिविडेंड पे करेंगे. और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? जिस साल प्रॉफिट है उसी साल डिविडेंड मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं उस साल कोई डिविडेंड नहीं. कन्वर्टेबल में अगर आप देखो तो these are converted into equity shares upon maturity, and that is the reason they are also called as the quasi equity. Okay, remember that is the reason I said that the convertible preference shares, these are not your pure instruments. Okay, these are hybrid. Redeemable, basically ये जो preference shares है इसको आपको redeem करना होगा. और आप कब redeem करोगे? You have to redeem this within 20 years. maximum maturity आपका 20 years रहता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से. as per companies act you cannot issue irredeemable preference shares. फिर आता है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. सबसे गलत और जो एक मिथ सबके दिमाग में रहता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो जिनको वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेशन मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको उनके फिक्स्ड डिविडेंड पे करने के बाद भी सरप्लस प्रॉफिट में कुछ पार्टिसिपेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. तो एक बार फिर से इसको ध्यान से आप रीड करना. दीज आर द शेयर होल्डर्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी वोटिंग राइट. ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में इसी में लिख दिया. इनको क्या मिलता है? व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू? दे आर एंटाइटल्ड टू participate in the surplus profit which is left after the payment of the fixed preference and equity dividend. Okay, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप यहां पर देखोगे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में दे आर एंटाइटल्ड ओनली टू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द डिविडेंड. एंड जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे आर नॉन पार्टिसिपेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. ओके, उनको उनका फिक्स डिविडेंड मिलता है, बाकी जो भी प्रॉफिट हुआ वो सब इक्विटी वालों का. देन यू हैव इक्वी प्रेफ. अब इक्वी प्रेफ आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है. सिंपल आपका यहाँ पे इक्वी प्रेफ में आप देखो जो इक्विटी शेयर्स जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ये आगे जाकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दीज आर योर इक्विटी शेयर, दे आर फुल्ली कन्वर्टेबल. इसमें दो पार्ट होते हैं इसीलिए यहाँ पर ये दो लाइन लिखा है. इक्वी प्रेफ के दो पार्ट होंगे. एक हो जाएगा आपका पार्ट ए
और एक हो जाएगा आपका इक्वी प्रेफ का पार्ट बी। अब पार्ट ए जो है ये आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, दीज गेट्स कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली। और अगर आप बी पार्ट देखोगे तो बी पार्ट गेट्स कन्वर्टेड ऑप्शनली, ये ऑप्शनली कन्वर्ट होता है। और जनरली जब कन्वर्ट होगा दे आर कन्वर्टेड एट लेस देन मार्केट प्राइस, और तकरीबन 30% का इनको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये आपके पास इक्वी प्रेफ का है, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, these are automatically converted into the equity shares। फिर अगर आप देखो डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स इज बेसिकली द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटेडनेस। ठीक है, आपने किसी से उधार लिया, उसका एक्नॉलेजमेंट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसमें पे करते हो, एंड दीज आर सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। नॉट नेसेसरी कि आपको हर समय उसको सिक्योर करके रखना ही है, देर आर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑल्सो विच आर इशूड, बट येस इफ यू वांट आप सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, और उसके लिए आप कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हो। डिबेंचर होल्डर्स गेट नो वोटिंग राइट व्हाटसोएवर मैनर, ओके। और डिबेंचर्स को जब आप इशू करते हो तो आप अपॉइंट करते हो डिबेंचर ट्रस्टीज को, और ये ट्रस्टीज बेसिकली क्या करते हैं, दे एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट अफेक्टेड, वहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। तो ये डिबेंचर ट्रस्टीज का वर्क रहता है। देन अगर आप फर्दर यहाँ पे देखो कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं, तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, परपेचुअल। परपेचुअल डिबेंचर्स आप इशू नहीं कर सकते बिकॉज कंपनीज एक्ट आपको नहीं बताता, मतलब अलाउ नहीं करता कि परपेचुअल डिबेंचर्स आप इशू करो। सो दीज आर टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years from the date of issue, ओके। तो यहां पर एक क्वेश्चन आया है, ट्रस्टीज कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी है, हम पढ़ेंगे हु कैन बी द ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टीज का एक रेगुलेशन है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपको बता दूंगा कि कौन ट्रस्टीज यहाँ पे बन सकता है। फाइनल के अंदर आपको मिलेगा कि हु कैन बिकम द ट्रस्टीज। फिर अगर आप यहाँ पे देखो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स इज बियरर एंड रजिस्टर्ड। तो बियरर जिसकी लाठी उसकी भैंस, whosoever has the डिबेंचर सर्टिफिकेट इन द हैंड इज द ओनर, और रजिस्टर्ड वाले में जिसका नाम लिखा है वो ही इसका ओनर बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। इसको हम कई बार FCD बोलते हैं, इसको PCD बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में NCD बोलते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के आपको डिबेंचर्स देखने को मिलेंगे। तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो जो 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टली कन्वर्टेबल जो आधा कन्वर्ट होगा, बचा हुआ कन्वर्ट नहीं होगा। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो किसी भी एंगल से यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, दीज आर द रिडीमेबल डिबेंचर्स, दीज आर द रिडीमेबल डिबेंचर्स, ओके। फिर आता है वारंट। अब वारंट आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद में हम इसको फिनिश को आज के लेक्चर को एंड करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप मैकडॉनल्ड्स के अंदर गए और आपने मैकडॉनल्ड्स में एक हैप्पी मील लिया, उस हैप्पी मील के बाद में उसने आपको ऐसा एक वाउचर दे दिया, और उस वाउचर में आपको क्या बोला कि आप नेक्स्ट टाइम अगर परचेज करोगे हैप्पी मील तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये वाउचर फ्री में नहीं मिल रहा है, ये वाउचर के लिए वो आपसे सपोज 10 रुपया चार्ज कर रहा है, या लेट्स से 20 रुपीज चार्ज कर रहा है, 20 रुपीज चार्ज, और नेक्स्ट परचेज पे आपको 25% ऑफ। सिनेरियो समझ में आया? अब 25% ऑफ मतलब अनलिमिटेड, कोई ऐसा नहीं अप टू दिस मच रुपीज, और ये 20 रुपीज का वाउचर था। और ये वाउचर जो है ये वैलिड है लेट्स से 31 मार्च तक के लिए, 31 मार्च 2020 तक के लिए ये वैलिड था। गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल,
आपने ये वाउचर कब परचेज किया? आपने ये वाउचर परचेज किया 1 मार्च को। 20 रुपए का आपने ये वाउचर परचेज किया और आपने बोला अरे यार मैं तो मैकडोनल्ड्स आते ही रहता हूँ, अगली बार आऊंगा तो सबको, फ्रेंड्स वगैरह को सबको साथ में लेके आऊंगा, 25% ऑफ मेरे को मिल जाएगा, आई विल बी सो हैप्पी। राइट, आपने इस तरह से करके यहाँ पे इसको परचेज किया। हाँ मार्च, ऑफ कोर्स। अच्छा मैंने मार्केट लिख दिया, सॉरी, ये मैंने बताया ना सेबी का असर है। चलिए तो ये आपने 1 मार्च, ओके, तो 1 मार्च को आपने इसको परचेज किया, बट ईयर मैं कौन सा बता रहा हूं हमको, 2020 आपने इसको परचेज किया। अब यू थॉट 1 महीने के अंदर अंदर तो मैं यहाँ पे चले ही जाऊंगा। आपने सोचा था 28 मार्च को आपका बर्थडे है, तो आप अपना बर्थडे पार्टी कहाँ दोगे? मैकडोनल्ड्स के अंदर ही दोगे, और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, कन्वीनियंट, और आपने ये वाउचर परचेज कर लिया। अब 28 मार्च को जब आप रेस्टोरेंट में या वो मैकडोनल्ड्स में खाना खाने के लिए जाओगे, फ्रेंड्स को ट्रीट दोगे, तो आप मुझे बताओ क्या मैकडोनल्ड्स वाला आपको 25% का ऑफ देगा कि नहीं देगा? मैकडोनल्ड्स वाला आपको ऑफ देगा कि नहीं देगा? आंसर इज यस, मना नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर आप 28 मार्च को नहीं गए, क्योंकि देखो 28 मार्च 2020 को क्या हो गया था, समृद्धि ने यहाँ पे बोला है हाँ सर ओनली 1 मील, नहीं ये 1 मील नहीं है, अनलिमिटेड ऑफ, आपका टोटल बिल अमाउंट, आपका जो टोटल बिल अमाउंट होगा उसके ऊपर 25% है। बट मुद्दे का बात ये नहीं है, मुद्दे का टॉपिक ये है कि अगर 28 मार्च को आप गए तो आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा 25%। लेकिन अगर आप 28 मार्च को नहीं गए, लॉकडाउन लग गया था जैसे, तो क्या आपको ये 20 रुपीज का रिफंड मिलेगा? क्या ये 20 रुपीज का रिफंड मिलेगा? आंसर इज नो। ओके वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि आपने ये कूपन परचेज कर लिया है, क्या ये मैंडेटरी है अब आपके लिए कि आपको 31 मार्च के पहले पहले मैकडोनल्ड्स जाना ही जाना है? क्या मैंडेटरी है कि आपको जाना ही जाना है? आपका मन आप जाओ, आपका मन आप नहीं जाओ, फॉरगेट लॉकडाउन। यहां पर लेट्स से वसूल करना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। सपोज करो समृद्धि ये आप ही के पास था, आपने डिसाइड किया यार ये ना बहुत ही मैकडोनल्ड्स तो ना आजकल ऐसा हो गया हर कोई जा रहा है, चलो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते, मैं सबको लेकर जाऊंगी पिज्जा हट, राइट, मैं सबको पिज्जा हट लेके जाने वाली हूँ। अभी ठीक है ये 20 रुपया का कूपन है, गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपको मैकडोनल्ड्स वाला केस फाइल करेगा आपके अगेंस्ट कि आपने ये 20 रुपया का कूपन लिया था, 25% ऑफ, आप आए क्यों नहीं? आंसर इज नो। चलो, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो आपको वारंट समझाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। व्हाट इज अ वारंट? देखो, वारंट में बेसिकली इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, वारंट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। रिमेंबर, आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो कि आपको मैकडोनल्ड्स जाना ही जाना है, इट गिव्स यू द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। इट गिव्स यू द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीदो, नहीं खरीदना चाहो तो मत खरीदो। द होल्डर ऑफ द वारंट विल हैव एन ऑप्शन, उसके पास एक ऑप्शन होगा टू बाय सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो प्राइस होगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि ये वारंट लिया ना, इस भाव पे आपको इतने इतने शेयर्स मिल जाएंगे, अगर ले लेते हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आप बताओ, इज दिस क्लियर? वारंट यहां पर क्लियर हुआ आपको? क्या वारंट क्लियर हुआ? तो यहां से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज एंड ऑल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अब किसी का अगर ईमेल आईडी यहां पर रह गया है, किसी का ईमेल आईडी अगर रहता है तो प्लीज आप मेरे को बताओ, आई विल जस्ट ऐड यू। लास्ट ईमेल आईडी यहाँ पे साक्षी का ऐड हुआ था, साक्षी के बाद किसी ने ईमेल आईडी अपना शेयर किया और मैंने ऐड नहीं किया हो?
एक ईमेल आईडी आया था, आई रिमेम्बर, बट आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग। मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको मैं बताता हूँ आप कैसे ऑपरेट करोगे। आप चेक करो। हाँ तो ओके, आप सबने अपना ईमेल आईडी शेयर किया है। ओके, अब देखो, आप सबको एक ईमेल मिलेगा। स्टे कनेक्टेड टू मी, आप सब मेरे साथ कनेक्टेड रहो। आप देखो, आप सबको एक ईमेल मिलेगा अभी। क्या आपको ईमेल मिला? जिसको मिला आप मुझे व्हाट्स यहाँ पे ग्रुप में टेक्स्ट कर दो, मिला। आप ओपन करो उस ईमेल को। आपको सी एस एग्जीक्यूटिव CMSL नाम का फोल्डर का एक्सेस मिला होगा, करेक्ट? राइट। इसमें आप क्लास स्लाइड्स में जाओ, तो वहां पर एक सब फोल्डर होगा क्लास स्लाइड्स, पास्ट पेपर, और एक ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप क्लास स्लाइड्स को ओपन करो और इसमें जो पीडीएफ है उसको क्लिक करो। जब पीडीएफ को ओपन करोगे आपको आज के क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप चेक करो, और सब कुछ वारंट तक जो मैंने लिखा है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं इसी में चीजों को ऐड करते रहूंगा। सर ये आज तक ही दिखाएगा या कभी भी? जब भी। अब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा एंड यू कैन एक्सेस। कल को मैं कोई न्यूज आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं तो वो भी ऐसे ही डाल दूंगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, फाइनल वालों का जो कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर है, सी, यस, ये देखो, इनके साथ में मैंने करंट अफेयर का भी एक फोल्डर डाल के रखा है। तो कोई न्यूज आता है तो मैं वो इनके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो वो ये भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ भी यही करूंगा। इसी फोल्डर के अंदर मैं करंट अफेयर्स भी डालते जाऊंगा, तो कोई न्यूज होगा जो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। तो अब ये जो फोल्डर है ये फोल्डर आपको सेव करके रखना होगा। ओके, ऑल राइट देन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।